All right. Assalamu alaikum, students. हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आप मेरी आवाज़ आ रही है और आपको स्क्रीन शेयर भी हो रही है? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। Today's our lecture is lecture 23, and the lecture is about message integrity and authentication. Last time we had discussed an asymmetric key cryptography algorithm, RSA, in detail. So first of all, before I start with the message integrity, do you have any questions about the RSA asymmetric key cryptography algorithm? Here is, if you recall, this is our last lecture. In this, we had discussed this RSA algorithm from here. Okay, this we had discussed RSA. We had learned about the encryption and decryption algorithm for RSA. It was nothing. Encryption was nothing but taking the power of plain text by a encryption key which was public key. In the asymmetric key cryptography, you have a public key and you have a private key. So you take the power of a plain text by a public key. That is the encryption algorithm. Modulus n. N is the set Zn from which we are dealing with these numbers. Decryption algorithm was also very simple. You take the ciphertext and takes its power D, which is the private key. So you take cipher key number, take its power with the private key. And that is the decryption algorithm, of course, under mod n. So these were the encryption and decryption, just taking the power of plain text by public key, or taking the power of cipher text with private key is the encryption algorithm, decryption algorithm. Very simple. Then we had learned how to generate these keys, encryption and decryption key. Here's the key generation thing. We did an example to see how we can start with two prime numbers randomly selected by us in a domain, and we can reach to these public and private keys over there. We did the example for same thing. We said if the plain text was a number 5, how can we encrypt it? These were the given keys. Public key was 13, private key was 5. This is n. So if 5 was a number plain text and 13 was the public key, we said 5 power 13 mod 77, and this was the ciphertext. Then we took the ciphertext and we checked if we take the power of the private key, which is 37, do we get back 5? Yes, we did get back 5. So we saw that the algorithm works if we generate the keys by that approach which we have learned. So an asymmetric key crypto system was
like this, that it has the recipient side will generate the key pair which we have learned. It will generate the private and public key pair. Receiving side generates that. Like if Alice has to send a message to Bob, Bob will generate the key pair which you have learned. Bob will make the public key E public to everybody, and of course N, which is modulus. And Bob will keep the private key to himself. And then anybody, including Alice, can encrypt by using the encryption algorithm you just now learned, send the thing, and Bob, because Bob has the D, can decrypt it. So that is the way we have learned about it. I showed you that you can have, it's not only that on one number this is working, just to satisfy yourself that if you have this key 13 and 37, it is not that it will work only a plain text of 5. It should work on any plain text because these are the keys and the result should hold good फॉर एनी प्लेन टेक्स्ट. तो ये मिसाल एग्जाम्पल हमारी 5 के लिए थी और हमने देखा कि काम करती है. फॉर द सेम कीज जो आपकी हैं 13 एंड 37, ये हमने देखा कि आप एक और एग्जाम्पल लें, अगर प्लेन टेक्स्ट 63 लें, उसको भी इसी तरह 13 की पावर लें और एक आंसर आएगा. उस आंसर की अगर आप फिर पावर 37 लें, अगेन यू गेट 63 बैक. तो those keys should encrypt and decrypt any number, plain text number, under this rule. So we verified by another example here. फिर मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर आपके नंबर की बजाय आपके पास टेक्स्ट है, फर्ज करो आपने भेजना है नो, इंग्लिश टेक्स्ट लेटर्स एन एंड ओ, नो, वो इस केस में आप क्या करेंगे? तो मैंने इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो काम करता है ये तो नंबर्स पे काम करता है. तो फिर हाउ टू डू दैट? उन्होंने कहा कि ओके, हमें तो नंबर चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं कि n के अगेंस्ट हम एक नंबर लिखें. इफ यू नो कि एक टेबल हमारे पास थी जब हम DS वगैरह भी कर रहे थे, जिसमें लिस्ट होता था कि A इज 0 इंटीजर के बराबर है और B जो है वो 1 के बराबर, 3 2 के. तो हमने एक कॉरस्पॉन्डेंस बनाई थी ABCD और 0 1 2 3 की टेबल. उस टेबल को यूज करते हुए N के अगेंस्ट हमने लिखा 13 और O के अगेंस्ट नेक्स्ट में हमने लिखा 14. और फिर हमने कहा कि हमें तो यहाँ पे एक इंटीजर नंबर चाहिए होता है. प्लेन टेक्स्ट इज इंटीजर नंबर. हमारी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी is not like working on binary bits. It works as mathematical expression of numbers. तो अब यहाँ नंबर के लिए उन्होंने n के अगेंस्ट 30 लिखा, O के अगेंस्ट 14, और फिर उन्होंने उसको इकट्ठा करके कहा कि ओके, वी हैव नाउ ए नंबर 1314. इस पूरे को ज्वाइन करके उन्होंने एक बड़ा नंबर बना लिया. दे डोंट माइंड कि अगर नंबर बड़ा हो. तो ये एक बड़ा, हम इनको इस तरह उसने लिखा नो को 1314 एज P. और फिर इस एग्जाम्पल में अगर एनक्रिप्शन की 343 थी और डिक्रिप्शन की 12007 थी, तो अब इस 1314 को पहले एनक्रिप्ट किया तो आंसर ये आया. ये n था तो आंसर ये आया कैलकुलेशन से. फिर ये जो आंसर साइफर था, इसको जब डिक्रिप्ट किया तो प्लेन टेक्स्ट वापस 1314 बन गए. अब एनकोडिंग और डिकोडिंग में ये प्लान था कि n के अगेंस्ट नंबर, O के अगेंस्ट नंबर लिखेंगे, ये एनकोडिंग थी. तो बाहर इसके अगेंस्ट डिकोडर लगाया कि अब जो नंबर पहला है इसके अगेंस्ट n, फिर दूसरा नंबर देखा उसके अगेंस्ट O, और फिर दोबारा नो
recover हुआ. That is how in this case the text will be handled or is handled. इस तरह हमने पूरा सिस्टम RSA का, जो हमने पहले एक ब्लॉक डायग्राम बनाई थी कि कोई भी एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के लिए सिस्टम के लिए ये अरेंजमेंट होती है कि रेसिपिएंट की जनरेट करता है और डिक्रिप्शन करता है, सेंडर एनक्रिप्शन करता है. यही बात RSA के लिए अब हमें पूरे, हमने इसके ये बॉक्स भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया. तो RSA के लिए ये जो सिस्टम होगा ब्लॉक डायग्राम जनरल एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की जो थी, इट विल चेंज फॉर RSA एज दिस. ये जो हमने बनाया ये वही डायग्राम अब RSA एल्गोरिदम के लिए जो विच इज अनदर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ये बन जाएगा कि बॉब के एंड पर डिक्रिप्शन और की जनरेशन है और एलिस जो कि सेंडर है उसके एंड पे एनक्रिप्टर है. अब स्पेसिफिक ऑफ RSA हमने यहाँ लिखे, वो जनरल डायग्राम थी, ये स्पेसिफिक टू RSA है. तो इस डायग्राम में हम क्या कह रहे हैं, encryption algorithm is this PE mod n, decryption algorithm is this CD mod n, key generation is this prime numbers PQ find n. इसमें हम E और D सिलेक्ट करते हैं, फिर इस तरह के E और D एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. E and D की प्रोडक्ट अगर मॉड ऑफ फाई n लें हम तो फिर 1 होती है. ये की जनरेशन एल्गोरिदम है. इसमें से E को यहाँ से पब्लिक कर दिया गया सबको, E और N जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये E और N, और इसने D और N ऑफ कोर्स D और N अपने पास रखा था, वो इसने इस्तेमाल किया. ये प्राइवेट की हमेशा इसी के पास रही जिसने जनरेट की. ये हमने इसके बारे में मेन चीजें RSA के बारे में सीखी. Any question about the RSA thing which we have covered? Sir, सर what is ये मुझे समझ नहीं TOWF? आया. अगर ये आप मुझे दोबारा समझा दें तो फिर लास्ट टाइम हमने किया था AES वाला किया था, AES के बाद हम ये वाला कर रहे हैं, उसका मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ. ये डायग्राम बनी है ना सर, इसके जो ये डायग्राम बनी है, ये जो राइट पे हो गया इसका प्लेन टेक्स्ट, सर नहीं राइट में लेफ्ट पे हो गया प्लेन टेक्स्ट और राइट पे हो गया इसका ये हो गया डिक्रिप्टर का डिक्रिप्टर हो गया. तो इसके दरमियान में ये हमने सी बनाई है. सर ये काम किस तरह से करेंगे आप क्या बता देंगे, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा. अच्छा, ओके, ठीक ठीक. और आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? जी सर लास्ट क्लास अटेंड की थी, ये लास्ट ये RSA क्लास थी, RSA की. हाँ, लास्ट क्लास थी. उस दौरान हमने किया था क्वेश्चन AES का किया था. AES के बाद थोड़ा आगे पढ़ा था, उस दौरान का मुझे नहीं पता आगे आपने पढ़ाया था, लेकिन उस दौरान मेरा ये इंटरनेट चला गया था, इंटरनेट इशू आ गया था, जिससे जो है मुझे आगे करने करके आपने आगे ये टॉपिक पढ़ाया. तो जहाँ तक मुझे याद है कि AES का हम सैंपल कर रहे थे तो हमें क्लियर नहीं हो रहा था, वो हमने आपसे पूछा था. अच्छा, AES तो बहुत ख़त्म हो चुका है. उसको हम दोबारा जो कोई क्यूरी थी वो हमने लास्ट टाइम उसकी देखी होगी कि भाई आपको AES में क्या बात समझ नहीं आई, तो हम जैसे आज शुरू में वो देखते हैं तो हमने उसको देखा होगा. उसके बाद तो हमने लास्ट टाइम RSA किया है डिटेल से, यानी फिर हमने ये जो अभी मैंने ये स्लाइड्स है ना, ये मैंने रिपीट की है, तो आई होप कि ये आपको समझ आई हैं जो ये स्लाइड्स थी. ये सारा ये आपने देखा है. डज इट मेक सेंस टू यू? ये जो ये इसके बाद से ये सारी कि RSA की क्या है, व्हाट इज RSA, ये डज इट हाँ जी. नो व्हाट इज RSA? एक का भी नहीं पता.
इसका भी नहीं पता। जी थोड़ा बिल्कुल अच्छा, पता। थोड़ा थोड़ा क्योंकि चलो थोड़ा सा सर आप शॉर्टकट में बता दें तो फिर उसके बाद आगे शॉर्टकट। ओके, कंटिन्यू करें। अब अच्छा हुआ मुझे क्लियर हो गया ना, वरना मैं उसकी कोई बड़ी बारीक मुश्किल पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता। इट इज काइंड ऑफ रिपीटिंग क्विकली द आरएसए थिंग। मैंने वैसे अभी किसी हद तक तो रिपीट भी किया है। अच्छा चलो, फॉर एवरीबॉडी क्विकली, क्योंकि आई वेलकम क्वेश्चन और आई वुड लाइक टू गेट इनटू दैट। बल्कि मैंने आपके क्वेश्चन के बगैर ही आरएसएस काइंड ऑफ रिपीट किया, मगर इस assumption से किया कि आप पहला पिछला लेक्चर अटेंड कर चुके थे। उस लिहाज से मैंने रिपीट तो पूरा ही किया है, मगर मैंने ये असम्पशन फिर भी ली। जैसे मैंने की जनरेशन को हर स्टेप को आज नहीं लिया जबकि लास्ट टाइम लिया था। बेसिकली चलो ग्लोबल देख लो, फिर इसको डिटेल से देखना और फिर मेरे से बेशक क्लास या अलग में करना, मगर एक दफा देखोगे तो फिर ज्यादा सेंस बनेगा। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, यहाँ ये पहली स्लाइड थी कि हमने इससे पहले सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम सीखे थे, जो कि डीईएस पहले सीखा और फिर एईएस, और जी एसडीईएस और एसएईएस उसी के सिंपलर वर्जन थे और वो हमने बिल्कुल। फिनिश कर लिए, उनको एग्जांपल्स भी की, इम्प्लीमेंट भी किया। अब हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी खत्म हो चुकी है, अब हमने बिल्कुल। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी शुरू की। शुरू दिनों में मैंने आपको बताया था कि एक चीज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है और एक एसिमेट्रिक की। हाँ जी। मैंने उनके प्लस माइनस साइड भी बताई है कि हाँ जी। सिमेट्रिक की जो है वो फास्ट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है, इसलिए वो अभी भी कायम है। एसिमेट्रिक की ज्यादा पावरफुल था, एसिमेट्रिक की जी बेहतर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पावर मुहैया करता था। लोगों ने सोचा कि एसिमेट्रिक आ गया तो सिमेट्रिक वैनिश हो जाएगा। सिमेट्रिक वैनिश नहीं हुआ, क्योंकि एसिमेट्रिक की मैनेजमेंट में यूजफुल रहा आज तक। ये मैंने बताया था कि एसिमेट्रिक क्योंकि की मैनेजमेंट बेहतर कर लेता है, जो की को जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, अपडेट करना एक काफी मुश्किल काम है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, वो ये काम एसिमेट्रिक बेहतर करता है। तो इस रोल में इसके अभी भी एसिमेट्रिक है, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी फास्ट है तो एईएस और डीएस अभी भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में वही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दोनों का इस्तेमाल है, सिमेट्रिक का भी और एसिमेट्रिक का भी, इसलिए हम दोनों सीख रहे हैं। हम सिमेट्रिक सीख चुके थे, अब हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के जरिए से एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना सीखना चाहते हैं। एसिमेट्रिक में सबसे मशहूर एल्गोरिदम, जैसे सिमेट्रिक में एईएस और डीएस सबसे मशहूर एल्गोरिदम थे जो हमने सीखे, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आरएसए सबसे मशहूर एल्गोरिदम है। ये इसके मैनु बनाने वालों के नाम पर इस एल्गोरिदम का नाम है, ये आरएसए, राइवर्स्ट, शेमर, एडलमैन, इनके नाम पर इसका है। इसको लोग समटाइम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को लोग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या पब्लिक की एल्गोरिदम का नाम भी दे देते हैं। तो यू शुड नो कि अगर किसी ने पब्लिक की एल्गोरिदम कह दिया है तो इट इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, आरएसए, जिसको हम सीख रहे हैं। इसको मैंने बताया कि आपको जो अभी सबको, ये जो आखिर में भी हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं यहाँ चला जाता हूँ। हमने जब सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी की थी या सीखी थी, तो आपने हमेशा देखा हम ये डायग्राम बनाते थे। बिल्कुल। इसमें ये वो सिमेट्रिक की जेनरिक डायग्राम होती थी, ये एसिमेट्रिक की जेनरिक डायग्राम है। वहां जेनरिक डायग्राम क्या होती थी कि हमेशा एक ब्लॉक आप करते रहे बार बार, कोई भी सिमेट्रिक की लो कि जी यहाँ पर एक एनक्रिप्टर होना चाहिए, एनक्रिप्शन सिस्टम, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। इसको इधर प्लेन टेक्स्ट एंटर इसमें प्लेन टेक्स्ट एंटर होती है, इससे बाहर साइफर टेक्स्ट निकलता है, और इधर एक और बॉक्स होता है दूसरे एंड पर, वहां डिक्रिप्टर का एल्गोरिदम होता है। इसमें साइफर टेक्स्ट एंटर होती है और ये प्लेन टेक्स्ट निकलता है। ये सारे एल्गोरिदम के लिए एक कॉमन था फॉर द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें सिमेट्रिक होने का मतलब क्या था कि साइफर की यहाँ भी के एंटर होती है, की जनरेशन हमेशा अंदर
अस्यूम किया जाता है, यहाँ की जनरेशन अंदर है, जी सर। हम उसको नहीं। तो ये हम इसकी बात करते हैं। साइफर की बाहर से इधर इसमें भी के एंटर होती है और इसमें भी वही साइफर की, ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की एक जैसी है। ये उसकी जेनरिक ब्लॉक डायग्राम है। इस जेनरिक ब्लॉक डायग्राम में अब एनक्रिप्शन एल्गोरिदम डीईएस का कुछ और यहाँ फिल हो जाता है, ये दो चीजें, जी और एईएस के लिए कुछ और फिल हो जाता है। इस तरह ये जेनरिक बिल्कुल। डायग्राम थी। ऐसे ही एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में ये जेनरिक डायग्राम है फॉर एनी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। इसमें और इसमें फर्क आपको चंद फर्क नजर आ रहे हैं। एक ये कि जी इसी की तरह एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो वैसे ही है ब्लॉक, जी लेकिन जी एक ब्लॉक जो इसमें था, की जनरेशन, इसमें हर एक को एक ही की दी जाती थी और इंटरनली ही जो भी कोई अगर की जनरेशन है तो हो जाती थी, मगर एक ही की दोनों को दी जाती थी। और अक्सर जी ये की यहाँ पर ये जो एक करने का तरीका ये होता था कि ये की तो ये जनरेट करता था, ये वाली की इंटरनल की जनरेटर की बात नहीं कर रहा, वो तो दोनों में लगा हुआ है, वो पार्ट है एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर का। लेकिन ये की नॉर्मली इसमें ये बना जनरेट करता है रैंडमली, ये की रैंडमली पिक करता है और इसको भेजता है सिक्योर तरीके से। ये करते हैं सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी वाले, कि जो सेंडर है वो की बनाता है और फिर किसी सिक्योर मेथड से इसको भेजता है और फिर ये की इस्तेमाल करता है। ये तरीका है इनका। एसिमेट्रिक वालों का मुख्तलिफ तरीका है। इसके केस में की जो है वो ये बनाता है, जो रिसीव करने वाला है बॉब, वो की बनाता है। अच्छा, इस केस में की जो है वो सिंगल की नहीं है, इस केस में तो सिंगल की होती थी एक, इस केस में की का पेयर बनता है, क्योंकि इस केस में दो कीज इस्तेमाल होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक पब्लिक एंड प्राइवेट। जी, हेलो, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो पब्लिक में जा रहा है जो राइट पे लेफ्ट पे जा रहा है हाँ और जिसमें इनक्रिप्ट होगा, और जो प्राइवेट है वो डिक्रिप्ट होगा। प्राइवेट जो का अपना जाती होगा। हाँ, इस केस में एक की के नहीं होती जैसे उसमें के थी, इसमें दो कीज, यहाँ पे उनके नाम है ई और डी, हम रख लेते हैं। जी एक की को पब्लिक की कहते हैं, जी जो जो एनक्रिप्शन में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए शायद इसका नाम ई रख दिया। एक को प्राइवेट की कहते हैं, जो यहाँ मैंने डी इसका नाम रखा हुआ है, प्राइवेट की। ये की पेयर रिसीव करने, रेसिपिएंट बॉब ने कोई चीज रिसीव करनी है, उसने ये की पेयर बनाना है और इस की पेयर में से ई को पब्लिक कर देना है, सबको वेबसाइट पे डाल देना है, किसी को प्लेन मैसेजेस में लोगों को भेज देना है कभी मेरी पब्लिक की ये है, लेकिन उसने प्राइवेट की अपने पास रखनी है। अब किसी ने भी एनक्रिप्ट करना है तो वो ये पब्लिक की इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को भेज देगा, और ये बॉब जो है इसके पास क्योंकि प्राइवेट की है तो उस प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करके और उसको पढ़ लेगा। किसी के पास ये प्राइवेट की डी नहीं होगी, हर एक के पास तो ई होगी, इसलिए कोई और उस इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ सकता। तो इनकी अप्रोच ये है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वालों की। तो इस सिलसिले में फिर हमने ये सीखना था कि अगर ये एसिमेट्रिक की अप्रोच है, आपने बेसिक फर्क देखा कि इस केस में की सेंडर जनरेट करता है और भेजता है सेफ तरीके से हाइड करके टू रेसिपिएंट के भाई तुम भी यही की इस्तेमाल करो। ये सिमेट्रिक की वालों का तरीका था। एसिमेट्रिक वालों का तरीका क्या है, रिसीव करने वाला एक की पेयर बनाता है, उसको पब्लिक पार्ट का हिस्सा पब्लिक कर देता है की का और प्राइवेट अपने पास रखता है। लोग पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके इंफॉर्मेशन भेजते हैं और ये प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करके पढ़ता है। इन दोनों में ये फर्क नजर आ गया? यस सर। अच्छा,
अब सिर्फ क्या रह गया, अगर हम समझ गए हैं कि जनरल डायग्राम ये है, तो अब हमें सिर्फ सीखना ये रह गया था आरएसए में कि आरएसए का एनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है, और की जनरेशन का एल्गोरिथम क्या है। ये तो जेनरिक थी। अब हम आरएसए सीख रहे थे, विच इज अनदर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। तो हमने ये आरएसए के बारे में इन तीनों चीजों को सीखा। हमने ये सीखा जो ये है, ये उसी डायग्राम के हवाले से हमने कहा ओके आरएसए के लिए एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ये है, वेरी सिंपल। जो भी कोई प्लेन टेक्स्ट है उसकी पावर लो पब्लिक की, ये ई p टू द पावर e mod n करो, दैट्स इट, जॉब डन, साइफर टेक्स्ट बन गया। और ये नंबर्स हैं, इस केस में नंबरों से, मैथमेटिक्स से डील होता है। इट्स नॉट एक्सक्लूसिव ऑरिंग ऑफ बिट्स और समथिंग लाइक दैट, कैलकुलेशंस। सो यू गेट अ नंबर p। सर इसमें P वो होगा जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा, और E वो होगा जो हमारा पब्लिक की होगा। जी बिल्कुल। उन दोनों का फिर उसकी वो पावर लेगा, जो पावर आएगी, जो हमें मोड गिवन होगा, तो मोड, उसका मोड लेके जो आंसर आएगा वो उसका साइफर टेक्स्ट होगा। और ये चीजें नंबरों में है, जिस तरह आपने मॉड अलजेब्रा शुरू में हमने आपको सिखाया था। इट इज दोज कैलकुलेशंस दैट यू एक्चुअली कैलकुलेट दैट वे, कि आप एक नंबर लेते हो, फिर एक पावर, नंबर की पावर ले करते हो। हमने पावर्स लेना भी सीखी थी, बड़ी बड़ी पावर भी लेना सीखी थी, और उसका मॉड लेते हो, और जो नंबर का आंसर आता है वो नंबर यहाँ सेंड करते हो। फिर इधर उस नंबर को लेते हो सी, और उसकी पावर एक और नंबर से लेते हो जो कि डी है, डिक्रिप्शन की, प्राइवेट की, और उसका मॉडर्न लेते हो। फिर एक नंबर आता है, ये नंबर शुड बी सेम एज दिस नंबर इफ थिंग्स हैव वर्क फाइन एंड कीज आर करेक्ट। इन दोनों का, इन दोनों कामों के लिए जो ई और डी चाहिए होता है, की पेयर, वो आप ये रेसिपिएंट यहाँ पर की जनरेशन में जनरेट करता है। उसका डिटेल्ड एल्गोरिथम हमने सीखा है, उसके एक एक स्टेप में कैलकुलेशन करना सीखी है कि कैसे ई और डी जनरेट किए जाते हैं। उसकी हमने एग्जाम्पल भी की है, और इस तरह ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। जी क्वेश्चन बोलिए, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये नंबर में गिवन होगा ना, या अल्फाबेट में भी गिवन हो सकता है? अल्फाबेट में या नंबर्स में? जी यही में से एक में गिवन होगा। जी यही मैंने आपको अभी आज दिखाया है, दोबारा जब रिपीट किया था। अच्छा, उसका ये है कि अब आपको तीन चीजें चाहिए थी। देखो नंबर है, सब जगह नंबर है। प्लेन टेक्स्ट, ये मिसाल जो मैंने आज रिपीट भी की, पहले भी यही कराई थी, इसमें प्लेन टेक्स्ट वगैरह एक नंबर होंगे। जैसे ये 5 है, प्लेन टेक्स्ट विल बी लाइक ए नंबर 5, E will be like a number 13, N will be like a number 77, और प्राइवेट की इज लाइक अ नंबर 37। ये नंबर्स हैं। अगर नंबर्स हैं तो ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, PE mod n। ये P, ये पावर E, ये mod n। तो हमारा आंसर ये आ गया, ये नंबर आया 26, ये दूसरे एंड पे भेज दिया साइफर टेक्स्ट, वहां रिसीव हुआ। उसने उस नंबर को डिक्रिप्शन की के नंबर से पावर ली, 26 पावर 37 मॉड 77 कैलकुलेट किया, उसका आंसर फिर 5 आया। क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि आपका एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर सही काम कर रहा है और आपने की जनरेशन सही की है। ये उसकी एग्जाम्पल है नंबरों के जरिए से। अब ये एनक्रिप्शन की 13 और डिक्रिप्शन की 37 कैसे आए, इसके लिए आपको देखना है कि हाउ टू जनरेट दिस कीज। वो जनरेशन की हमने ये सिखाया कि जनरेशन का ये एल्गोरिथम है। उसके स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए कि प्राइम नंबर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाते हैं, फिर 5n बनाते हैं, फिर एक ई को सिलेक्ट करते हैं इन अ रेंज, और फिर उसका इनवर्स निकालते हैं तो डी पता चल जाता है। तो हमने ये तरीका एक एल्गोरिथम लिख के सीखा कि कैसे
एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जनरेट की जा सकती है, और उसकी ये एग्जाम्पल की। ठीक है, इसमें ये हमने जो हमें 7 और 11 मिला हुआ है, ये हमें गिवन होगा या हमें खुद से लेना पड़ेगा? जी यहाँ पे कहा हुआ है यू कैन सिलेक्ट टू वेरी लार्ज नंबर्स p एंड q सच दैट p इज नॉट इक्वल टू q इन ए डोमेन कि आपने किस रेंज में काम कर रहे हैं। ये काम खाली आपने इसमें लिमिट रखी है कि आपका z का सेट क्या है, zn। बस ये आपकी सिलेक्शन है टू इनिशिएट फॉर जनरेशन ऑफ द की। ठीक है, और साथ एक और है सर, ये आपको जो खाली E है जो दे सेलेक्ट, आर वेरी लार्ज प्राइम नंबर्स। मैंने पिछली दफा एक स्लाइड में बताया था कि दे मे बी 2 raised to power 1024, 2 raised to power 1, 2 raised to power 5, 512, यानी दे आर वेरी ह्यूज नंबर्स। ये सिर्फ पाबंदी है, बस उसके अलावा आपके पास चॉइस है, यू पिक p एंड q टू वेरी लार्ज नंबर, फिर उनसे n बनाओगे, फिर उनसे phi n बनाओगे, फिर उसमें phi n के सेट में से e सिलेक्ट करोगे, फिर e से d बनाओगे, और इस तरह आप की जनरेशन करोगे। ये कीज इस्तेमाल हमने करके दिखाई है इस एग्जाम्पल में against a given plain text 5 and we found it works। ठीक है, सर ये तो मुझे क्लियर हो गया है सर, मुझे ये क्लियर ओके हो गया। बस मैंने एक चीज़ क्लियर करनी है इसमें जी कि जो आपने प्राइवेट की दिया हुआ है, प्राइवेट की 37, ये जो आप पिछली स्लाइड में भी बता रहे जी थे, जी 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 तो की जनरेटर में उसमें आपने एक में दिया हुआ था ई सेलेक्ट किया आपने, मतलब कि सिलेक्ट किया ई 13, उसका 13 का इन्वर्स ही है, इन्वर्स लेने के बाद उसका मोड ये वो मोड में 1 आ रहा है। तो ये हमें ये 37 कैसे है ये हमें बता दें। जी, ये हमने किया था। अगेन यू मस्ट एटलीस्ट गो थ्रू। ये था, सर ये यहाँ पे, हाँ ओके। जी, ये ये फाई एन इज दिस। अगर ये पी एंड क्यू थे तो इससे ये एन निकाला, और फिर पी और क्यू को जो आपने सिलेक्ट किए थे इनको एक सब माइनस करके p -1 और q -1 को मल्टीप्लाई हाँ करके जी, फाई हाँ एन जी, निकाला। ये देखिए फाई एन के सेट में से अब ये ई और डी ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ई आपने सिलेक्ट कर लिया, ई के सिलेक्शन में आपने इस सेट में से एक ऐसा नंबर लिया विच मस्ट बी ए रिलेटिव प्राइम टू फाई एन। रिलेटिव प्राइम इसलिए कि बाद में इसका इनवर्स निकालना था, इसलिए इट मस्ट बी ए रिलेटिव प्राइम फाई एन। पहले तो ई के सिलेक्ट करने का ये क्राइटेरिया है, और वो हो सकता था 7, बहुत से नंबर हो सकते थे इस केस में, क्योंकि फाई एन 60 था। तो आप 2 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, 5 भी नहीं कर सकते, 6 भी नहीं कर सकते, 7 कर सकते हैं, फिर आप 8 नहीं कर सकते, 9 नहीं कर सकते, 11 कर सकते हैं, फिर 13 कर सकते हैं। तो मैंने 13 सिलेक्ट किया था यहाँ कि ओके मर्जी है, तो हमने 13 सिलेक्ट कर लिया। अब इसी सेट में ये फाई एन का जो सेट है जेड फाई एन, Z60 में से मैंने E सिलेक्ट किया है, Z60 स्टार में से एक्चुअली E सिलेक्ट किया है, और इस E के अगेंस्ट मुझे एक नंबर मालूम करना है जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, जो उसको मैं D कहूंगा। D शुड बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के दो तरीके आपने सीखे हुए हैं। एक ये कि या तो इस ZN60 के अंदर 13 के अगेंस्ट आप नंबर बारी बारी ट्राई करते रहे, मल्टीप्लाई करके जो मॉड 60 ले, अगर आंसर 1 आ जाए तो उसको सिलेक्ट कर ले। ये है ब्रूट फोर्स मेथड। लंबा होता है जब ये नंबर बड़ा हो। एक इसका सिंपल और आसान स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए यहाँ पर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम इस्तेमाल करें, बिल्कुल। और उससे इस चीज को पता करें। और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या था? एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम वाज फिर वो कि उसके आप लिए यहाँ n जो मॉड का है, फाई n इस केस में 60 लिखिए, ये आपके हैं R1, R2,
और यहाँ Q, और यहाँ T1, T2, और यहाँ T, और यहाँ T1 T2 में 0 1, इधर ये मॉड का 60, और जिस चीज का मॉड लेना 13, ये 13, ठीक है। ये समझ गए, ये मैंने लिखे सारे, सर ये हमने लास्ट टाइम किए हुए थे। ये किए हुए हैं ना, ये मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो आप कह रहे हो कैसे आया, ये अगर आपको ये किए हुए से रिलेट नहीं किया ना आपने, किए हुए तो है, रिलेट नहीं हुआ। बिल्कुल अगर आप अब ये चीजें लिखो जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, और ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम इस पे अप्लाई करो यहाँ, तो आपको यहाँ पर जब ये 1 आएगा, उस वक्त जो यहाँ टी पे चीज होगी वो 37 होगा, और ये आपका आंसर है। ये जो आप कह रहे हो ना 37 कहाँ से आया, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, यहाँ से आया है। बिल्कुल। ये इसका जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट किया है मैंने यहाँ। इसका दूसरा मेथड ये था कि इसी Z60 के स्टार में मैं बारी बारी नंबर करता, वो लेबोरियस मेथड है, और ये प्रॉपर मेथड है, ठीक है। बिल्कुल जी हो गया, सब क्लियर हो गया। यस सर। क्लास ही अटेंड किया करो यार, हमें लेक्चर क्लास अटेंड करते हैं, वो लास्ट टाइम बची हुए इंटरनेट को मुझे याद है, इंटरनेट का इशू हुआ था जिसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं यही सबको आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप यू कैन डू इज कि बड़ा रिलीजियसली आप क्लास अटेंड करो, क्योंकि बात क्या है, सर्टेन थिंग्स आर ओल्ड, तो आप आधी अटेंड की, आधी नहीं की, आधा नॉलेज पिछले से अप्लाई कर दिया, कुछ याद था कुछ, और अब आप एक पूरी चीज ही नई जब सीख रहे हो तो यू कांट अफोर्ड टू मिस इवन अ सिंगल क्लास, क्योंकि दैट इज योर फर्स्ट ट्रिगर ऑफ लर्निंग। अच्छा, फिर आप उससे आगे जा सकते हो, फिर आप उससे आगे जाओगे। अब इसमें आपको जो जो हिंट दिए हैं इसमें भी आपने काम करना है, दोबारा EEA को निकाल के देखना है, वेरीफाई करना है, ये बहुत कुछ करना है, मगर आपको एक बेसिक सोच के लिए डायरेक्शन पहले चाहिए नई चीज में, वो जरूरी है, ठीक है। ओके, लेकिन चलो आपने एक दफा अगर क्लास मिस की है तो हमने इस एक्सरसाइज को रिपीट कर लिया, मे बी इससे और भी बाज लोगों को जो या मिस कर गए थे या शायद अभी तक भी कई चीजें नहीं समझे थे, तो उनको भी हेल्प हो गई, काइंड ऑफ थर्ड रिवीजन हो गई हमारी, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन बाय फजल और एनीबॉडी एल्स? ओके, चलिए, ऑलराइट, ओके, आप एक दफा इसे देख के गो थ्रू करके। 1 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गए पीछे। अच्छा, तो हम दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं ओके, ताकि हाँ नया टॉपिक फिर हम दोबारा डिस्टर्ब ना हो। ओके, हम ये कर लेते हैं, हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, ऑलराइट।